Hello everyone, welcome back to Excel Learning, your digital learning platform. And today we are going to learn a poem, The Flower School, written by Rabindranath Tagore. I have taken up this poem from class 6 book. Okay. So before starting this poem, let me tell you that this particular poem is dedicated to द मदर ऑफ आर एन टेगोर, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी माँ शारदा देवी को ये पोएम डेडिकेट किया है, who was born in the year of 1830 and died in the year of 1875. Okay, so Sarada Devi was the name of the mother of Rabindranath Tagore, okay, who was born in the year of 1830 and died in the year of 1875. So ये पोएम रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने माँ को डेडिकेट किया है. ओके, और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो पोएम है, इस पोएम का स्पीकर एक छोटा सा बच्चा है जो अपनी माँ के साथ यहाँ पे कन्वर्सेशन कर रहा है. हालांकि इस पोएम में उनके मतलब जो माँ है, जो मदर है, उनका एक्टिव कोई डायलॉग हम लोग को नहीं मिलेगा, बट वी कैन फील द प्रेजेंस ऑफ द मदर थ्रू आउट द पोएम. ओके, so right now without wasting any more time, let's get into the chapter, but I request you to take your book and take a pencil so that you can note down each and every point that I am going to tell you in this video. And after explaining the chapter, we will also learn all the poetic device, all the figure of speech that have been used in this poem and critical appreciation. Okay, तो चलो अब शुरू करते हैं. देखो, पहले इस पोएम को मैं एक बार रीड कर लूंगा, उसके बाद लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पे मैं जाऊंगा. देखो, when storm clouds rumble in the sky and June showers come down, the moist east wind comes marching over the heath to blow its bagpipes among the bamboos. Then crowds of flowers come out of a sudden from nobody knows where and dance upon the grass in wild glee. Mother, I really think the flowers go to school underground. They do their lessons with doors shut, and if they want to come out to play before it is time, their master makes them stand in a corner. When the rain come, they have their holidays. Branches clash together in the forest and the leaves rustle in the wild wind. The thunder clouds clap their giant hands and the flowers' children rush out in dresses of pink and yellow and white. Do you know, mother, their home is in the sky where the stars are? Have not you seen? यहाँ पे सीन होगा. ओके, have not you seen how eager they are to get there? Don't you know why they are in such a hurry? Of course, I can guess to whom they raise their arms. They have their mother as I have my own. So, अब देखो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पे हम लोग चलते हैं. ठीक है, बहुत ही फैसिनेटिंग पोएम है, बहुत ही निगूर एक इसका अर्थ है इस पोएम का. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल द पोएम स्टार्ट्स विथ अ stormy day. Okay, the poem starts with a stormy day. The speaker, मैं पहले ही और एक बार बता दूं आप लोगों को कि इस पोएम का जो स्पीकर है, स्पीकर एक छोटा सा बच्चा है. राइटर और पोइट है आर एन टैगोर, लेकिन स्पीकर जो है एक छोटा सा बच्चा है. तो इस पोएम में उस बच्चे का जो इमेजिनेशन है, उसी इमेजिनेशन को दर्शाया गया है. देखो, when storm clouds rumble in the sky and June showers come down, तो वो बच्चा यहाँ पे ये बोल रहा है कि जब स्टॉर्म क्लाउड रंबल इन द स्काई, जब क्लाउड्स जब रंबल करता है स्काई में, आसमान पे, एंड जून शावर्स कम डाउन, और जून के महीने पे जब बारिश होता है, देयर मॉइस्ट ईस्ट विंड कम्स मार्चिंग ओवर द हीथ. हीथ मीन्स एन ओपन लार्ज एरिया, एन ओपन लार्ज एरिया. तब क्या होता है, तब मॉइस्ट ईस्ट विंड आता है. कहाँ पे? ओपन लार्ज एरिया पे आता है, हीथ पे आता है. टू ब्लो इट्स बैक पाइप्स अमंग द बैम्बूज, और वो एक मेलोडियस साउंड क्रिएट करता है. कहाँ? बैम्बू ग्रोव्स पे. तो फर्स्ट टू लाइन्स टेल अस दैट व्हेन the clouds rumble in the sky and when in the month of June showers come down, at that time the moist east wind also comes to the heath, to an open large area, and it creates a melodious sound, a
पाइपिंग साउंड अमंग द बम्बूज, वो बैम्बू ग्रोव में एक मेलोडियस साउंड क्रिएट करता है। तब क्या होता है, तब क्राउड्स ऑफ फ्लावर्स कम आउट ऑफ अ सडन, तब क्या होता है, बहुत सारा फ्लावर्स फूल एक साथ बाहर आता है फ्रॉम नोबडी नोज वेयर, दैट मीन्स, और किसी को पता नहीं है कि वो फ्लावर्स एक्चुअली कहाँ से आता है, एंड डांस अपॉन द ग्रास इन वाइल्ड ग्ली, और सारा जो फूल है वो सारा फूल ग्रास के ऊपर एकदम डांस करने लगता है। वाइल्ड ग्ली मीन्स हैप्पीनेस, glee means happiness, okay, and all the flowers start dancing upon the grass in wild glee. That means the speaker says that when storm clouds rumble in the sky and when the showers come down, at that time moist wind comes marching over the heath and it creates a melodious sound in the bamboo grove. At that time suddenly a lot of flowers, a host of flowers come out, even no one knows from where they come, and after coming out they start dancing upon the grass in wild glee, that means out of happiness. Ma, I really think the flowers go to the school ground. तो यहाँ पे जाके somehow जो स्पीकर है, जो बच्चा है, वो अपना जो ओपिनियन है उसे पेश कर रहा है। बच्चा बोल रहा है यहाँ पे अपनी माँ को, माँ आई रियली थिंक, मुझे ये लगता है कि द फ्लावर्स, वो जो सारा फूल है वो अंडरग्राउंड स्कूल में जाता है। क्यों? क्योंकि ये बच्चा यहाँ पे बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया है कि जब भी स्काई में, जब भी आसमान पे ओके गर्जन होता है क्लाउड्स का, और जब भी जून महीने में शावर्स आता है, तभी ये जो फ्लावर्स है, ये जो फूल है, सडनली बाहर आ जाता है और क्या करता है, ये सारा फूल घास के ऊपर डांस करता है। तो अब उस बच्चे के मन में क्वेश्चन आया कि मैं तो ये देखता हूँ कि जब भी शावर होता है तब भी ये फूल आता है, लेकिन जब शावर नहीं होता है तब ये फूल नहीं आता है, तो कहाँ जाते हैं ये सारे फूल? तो इसीलिए इस पोएट ने, स्पीकर ने यहाँ पे अपना ओपिनियन पेश किया है कि मदर आई रियली थिंक द फ्लावर्स गो टू द स्कूल ग्राउंड, कि मम्मी मुझे ये लगता है कि जब बारिश नहीं रहता है ना, तब ये सारा फूल कहाँ जाता है, स्कूल अंडरग्राउंड में चला जाता है। दे डू देयर लेसन्स विथ डोर्स शट, और वो लोग वहाँ पे क्या करता है, वो फूल वहाँ पे अपना लेसन्स करता है विथ डोर्स शट, यानी कि दरवाज़ा बंद करके। यहाँ पे ज़मीन को, सॉइल को यहाँ पे डोर्स के हिसाब से कंपेयर किया गया है। एंड इफ दे वांट टू कम आउट टू प्ले बिफोर इट इज टाइम, और अगर वो बच्चे या फिर वो फूल उस अंडरग्राउंड स्कूल से बाहर आना चाहता है, देयर मास्टर मेक्स देम स्टैंड इन अ कॉर्नर, तो उनका जो टीचर है वो टीचर उन लोगों को पनिशमेंट देता है और कॉर्नर में खड़ा कर देता है। तो देखो, पहले मैंने कहा कि ये इस पोएम का स्पीकर एक छोटा सा बच्चा है, तो उस बच्चे के साथ भी ऐसा ही होता होगा। उस बच्चे को जब भी कोई गलती करता है वो बच्चा, वो स्पीकर, तो उन्हें पनिशमेंट मिलता होगा ऐसे कि क्योंकि तुम जाओ उस कॉर्नर पे खड़े हो जाओ कान पकड़ के। तो इसीलिए ये जो छोटा सा बच्चा है ये अपने हिसाब से इमेजिन कर रहा है कि उस फूल के साथ क्या होता होगा। दैट ऑल द फ्लावर्स एक्चुअली गो टू द अंडरग्राउंड स्कूल एंड दे डू देयर लेसन्स ओवर देयर विथ डोर्स शट, एंड इफ दे वांट टू कम आउट बिफोर द टाइम इज राइप, देयर मास्टर और देयर टीचर मेक्स देम स्टैंड इन अ कॉर्नर एंड गिव्स देम पनिशमेंट। When the rain come, they have their holidays। और मुझे माँ ये लगता है कि जब बारिश का महीना शुरू होता है तभी उन लोगों को हॉलीडे मिलता है। इसीलिए यहाँ पे उस बच्चे ने कहा when the June showers come, at that time all the flowers suddenly come out, no one knows from where, and they start dancing on the grass। Okay, इसीलिए वो बच्चा ये बोल रहा है कि when the rain come they have their holidays, कि एक्चुअली जब रेन आता है तब उन लोगों को हॉलीडे मिलता है। ब्रांचेस क्लैश टुगेदर इन द फॉरेस्ट, क्लैश मीन्स लाइक टू हिट ईच अदर यहाँ पे, ठीक है। ब्रांचेस clash together in the forest and the leaves rustle in the wild wind, the thunder clouds
clap their giant hands, and the flower children rush out in dresses of pink एंड येलो एंड वाइट। तो यहाँ पे बहुत अच्छा स्टॉर्मी वेदर का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जब जंगल में ब्रांचेस क्लैश होता है एक दूसरे के साथ, और जब लीव्स रसल होता है, यानी कि रसल मतलब यहाँ पे पत्तों का, सूखे पत्तों का जो आवाज़ होता है, ठीक है, और जब वो से रसल होता है और थंडर क्लाउड्स क्लैप देयर जायंट हैंड्स, और जब बहुत ज़ोर से लाइटनिंग होता है, तब क्या करता है, तब ये सारा जो बच्चा है यानी कि फ्लावर चिल्ड्रन जो है, दे जस्ट सडनली कम आउट ऑफ द ग्राउंड ऑफ पिंक एंड येलो एंड वाइट, यानी कि डिफरेंट कलर्ड फ्लावर्स यूज टू कम आउट ऑफ द ग्राउंड whenever the June month comes, whenever the monsoon season comes. Clear? देखो, do you know mother, their home is in the sky where the stars are. यहाँ पे फिर से वो बच्चा अपना एक ओपिनियन दे रहा है कि माँ क्या आपको पता है कि वो जो सारा बच्चा है ना, उन सारे बच्चे का जो घर है वो कहाँ पे है, वो स्काई में है, वो आसमान पे है जहाँ पे तारे रहते हैं, वेयर द स्टार्स आर। हैव नॉट यू सीन, क्या आपने ये ध्यान नहीं दिया, हाउ ईगर दे आर टू गॉड टू गेट देयर, कि वो लोग कितना उत्सुक रहता है अपने घर में जाने के लिए। क्यों? क्योंकि फ्लावर जो है, फ्लावर ऊपर की तरफ बढ़ता है, तो यहाँ पे वो छोटा सा बच्चा, इमेजिन क्या है, वो जो फ्लावर जो है, एक देख रहा, एक फ्लावर मान लो कि यहाँ पे ऐसे एक फ्लावर है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, इसका जो पत्ता है ये भी ऊपर की तरफ हाथ होता है ऐसे। तो इसको, ये जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को उस बच्चे, ये छोटा सा बच्चा ये इमेजिन कर रहा है कि सारे जो फ्लावर्स है इनका घर है आसमान पे, जहाँ पे क्या है, जहाँ पे तारा रहता है, जहाँ पे स्टार्स रहता है। तो इसीलिए बच्चा ये पूछ रहा है अपनी माँ से, हैव नॉट यू सीन, क्या आपने कभी ध्यान नहीं दिया, हाउ ईगर दे आर टू गेट देयर, कि वो लोग कितना उत्सुक रहता है अपने घर में जाने के लिए। डोंट यू नो वाई दे आर इन सच अ हरी, और क्या आपको पता है माँ कि इतना हरी में वो लोग क्यों रहता है? क्योंकि देखो मॉनसून सीजन जो है वो बहुत कम समय के लिए आता है, राइट? सो मॉनसून जस्ट कम्स and it goes. That's why the child has imagined over here that all the flowers are in hurry to get back to their home. Of course I can guess, हाँ मैं ये अनुमान लगा सकता हूँ, to whom they raise their arms, कि वो लोग किसके तरफ, इस डायरेक्शन का बात मैंने किया अभी, ये डायरेक्शन, किसके तरफ दे एक्चुअली रेज देयर आर्म्स, दे हैव देयर मदर्स एज आई हैव माई ओन। तो उस आसमान पे उस फ्लावर्स का माँ वहाँ पे रहती जैसे कि मेरी माँ यहाँ पे मेरे साथ है। तो ये गया टोटल एक्सप्लेनेशन, लेकिन अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। इस एक्सप्लेनेशन में और कुछ चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेट मी रब ऑल दिस so that it would be very easy for you to understand. Just a second. पोएम जो है, ये पोएम बहुत ही फैसिनेटिंग एक पोएम है, बहुत ही अब देखो आर.एन. टैगोर का लिखा हुआ पोएम है, तो इतना इजी तो होगा नहीं, फिर भी मैंने कोशिश किया जितना इजीली हो सके एक एक्सप्लेनेशन आप लोगों को दे पाओ। सो आई होप द पोएम हैज़ बिकम वेरी इजी फॉर यू राइट नाउ। द लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जो है, जो मैंने दिया, आई होप देर इज़ नो प्रॉब्लम इन द पोएम स्टिल। और कुछ पॉइंट मैं आप लोगों को बता दूँ, ठीक है? देखो, जैसे कि फर्स्ट लाइन पे, व्हेन द स्टॉर्म क्लाउड्स रंबल, स्टॉर्म क्लाउड्स इट कन्वेज अ सेंस ऑफ स्टॉर्म, स्टॉर्मी वेदर। ये सब पॉइंट हमेशा अपने आंसर स्क्रिप्ट में ऐड करना। सो स्टॉर्म क्लाउड कन्वेज अ सेंस ऑफ स्टॉर्मी वेदर and June showers come down, यानी कि June, this is the setting, this is the setting of the poem, this is the setting of the poem. The moist east wind comes marching, moist east wind come marching, personification, marching over the heath to blow its bagpipes among the bamboos, यानी it conveys a sense of melodious sound.
a sense of melodious tune or note. Clear? Okay. Then crowds of flower, exaggeration यहाँ पे यूज किया गया, hyperbole. Then crowds of flower come out of a sudden, a sense of suddenness, from nobody knows where. That means no one knows कि कहाँ से वो सब फ्लावर आ गया. एंड डांस अपॉन द ग्रास इन वाइल्ड ग्ली. डांस अपॉन द ग्रास इन वाइल्ड ग्ली. इट कन्वेज अ सेंस ऑफ हैप्पीनेस, a sense of happiness. Clear? Okay. Mother, I really think the flowers go to the school underground. It's a personal opinion. Of the child. Personal opinion of the child. They do their lessons with doors shut, and if they want to come out to play before it is time, their master makes them stand in the corner. A sense of punishment, or we can say strictness. That means the teacher of the flowers is very strict. Okay. When the rain comes, they have their holidays. Once again, holiday मतलब क्या? एक खुशी, एक happiness. Once again, it conveys a sense of happiness, a sense of freedom. Okay. Branches clash together in the forest, and the leaves rustle in wild wind. The thunder clouds clap their giant's hand. And the flower children rush out in dresses of pink, yellow, and white. A sense of colorfulness. Do you know, mother? Their home is in the sky where the stars are. It conveys a sense of long distance. क्योंकि फ्लावर्स जो है वो उगता है ज़मीन पे, लेकिन उन लोगों का घर है आसमान पे. सो इट कन्वेज अ सेंस ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस. हैव नॉट यू सीन हाउ ईगर दे आर टू गेट देयर? दैट मीन्स वी कैन सी दैट द स्पीकर is a good observer. Okay, very nicely he has observed everything, each and every activity of the flowers. Okay, don't you know why they are in such a hurry? Of course, I can guess to whom they raise their hand. They raise their arms. It conveys a sense of dependency. That means all the flowers are actually dependent on their mother. Okay. They have their mother as I have my own. So ये सारा point जो मैंने अभी आप लोगों को कहा, I hope you all have noted down all the points, and I request you all to add all the points in your answer script. Okay. चलो ये पार्ट गया. आई होप क्लियर हो रहा है आप लोगों को ये पोएम. चलो अब पॉइंट्स टू रिमेंबर में हम लोग चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस पोएम वाज पब्लिश्ड इन द कलेक्शन नेम द क्रिसेंट मून इन 1913. दिस इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन. ओके, ये एक इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दे दिया. द क्रिसेंट मून एक कलेक्शन है, अ कलेक्शन ऑफ पोएम which was published in the year of 1913. Okay. Number 2, this poem is about a child describing the nature. Really, in this poem, the child has described the nature, described a particular part of the nature, described a particular side of the nature very vividly, very minutely. That's why this poem is also a celebration of nature, we can say.
इट इज रिटन इन अ फ्री वर्स एंड इट इज अ लिरिकल पोएम। फ्री वर्स देखो, हम लोग को यहाँ पे कोई राइमिंग उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा, एंड इट इज़ अ लिरिकल पोएम, ये भी आंसर में ऐड करना। टेगोर हैज रिटन दिस पोएम फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ अ चाइल्ड। पहले ही मैंने कहा द पोएट इज रविंद्रनाथ टैगोर बट द स्पीकर is a small child. So the poet has written this poem from the perspective of a little child, and through this lyric Tagore presents the fear of a child attending a school. क्यों? क्योंकि उस बच्चे को भी पता है कि अगर मैं स्कूल जाऊंगा, मान लो कि स्कूल है सुबह के 8 बजे से शाम के 4 बजे तक, ठीक है, और अगर उससे पहले मैं स्कूल से अगर घर लौटना चाहूँगा तो मेरे जो टीचर हैं, मेरे टीचर मुझे पनिश करेंगे। सो similarly, in this poem, Tagore has presented the fear of a child attending a school. He also presents how the confinement they feel inside the school. एक स्कूल में आप जाओगे तो मानो कि आप एक confinement में रहोगे कि आपको ये नहीं करना है, आपको वो नहीं करना है। हर एक क्लास का एक टाइम लिमिटेशन रहेगा कि सुबह 8 बजे से 8:45 तक ये क्लास है, 8:45 से 9:30 तक ये क्लास है। इसी तरह हर एक रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको मेंटेन करना होगा। लेकिन एक बात बच्चों मैं आपको बता दूं कि आप लोग जब तक स्कूल में हो तब तक शायद आपको ये लगे कि चलो भाई क्यों इतना रूल्स एंड रेगुलेशंस क्यों है, मैं कॉलेज चला जाऊँगा तो मुझे फ्रीडम मिल जाएगा। बट बिलीव मी, राइट नाउ यू आर लिविंग द बेस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ। एकदम अभी मैं बहुत मिस करता हूँ अपने स्कूल लाइफ में। टीचर्स जो थे मेरे डांटते थे, बहुत बार पनिशमेंट में मुझे मिला है, ठीक है। तो तब जाके तब मैं जब स्कूल में था तब ये मुझे बहुत ख़राब लगता था, और अब ख़राब ये लगता है कि मेरे स्कूल लाइफ ख़त्म हो चुका है। और चाहे कोई कितना बड़ा इंसान बन जाए, कोई कितना पैसा कमा ले, वो स्कूल लाइफ कभी भी नहीं मिल सकता। सो इट्स अ काइंड ऑफ पेन, ओके। सो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी आप लोग स्कूल लाइफ में हो तो बहुत अच्छे हो और बहुत बेस्ट पार्ट अपने लाइफ का आप लोग बिता रहे हो। ओके चलो, गेट बैक टू द पोएम। ओके, the June showers and moist east wind indicate the nourishment nature provides to the children. अब देखो जून शावर मीन्स बारिश, पानी फूल के लिए, पेड़ पौधों के लिए बहुत ज़रूरी है। और विंड, विदाउट विंड कभी भी पेड़ पौधा सर्वाइव नहीं कर सकता है। सो दिस टू एलिमेंट्स आर एक्चुअली द नरिशमेंट दैट नेचर प्रोवाइड्स टू द चिल्ड्रन। यहाँ पे चिल्ड्रन मतलब फ्लावर्स। Clear? Okay, number 7. Through this poem, Tagore also shows how children are curious about everything. See, the speaker is very curious कि जब मानसून आता है, जब जून शावर आता है, तभी जाके सारा फूल बाहर आ जाता है। अरे भाई बाकी समय कहाँ रहता है वो लोग? सॉरी, मेरा पेन गिर गया। ओके, सो बाकी समय वो लोग कहाँ रहता है? तो द स्पीकर इज वेरी क्यूरियस। एंड नंबर 8, दिस पोएम कन्वेज अ सेंस ऑफ ग्रैंड पैरेड ऑर्केस्ट्रेटेड बाय द नेचर इटसेल्फ। अब ये वाला जो पार्ट है, दिस पर्टिकुलर पार्ट देखो ध्यान से, ये वाला पार्ट पढ़ो। Branches clash together in the forest and the leaves rustle in the wild wind and the thunder clouds clap their giant hands and the flower children rush out in dresses of pink and yellow and white. कितना सारा साउंड यहाँ पे यूज़ किया गया है। जब ब्रांचेस क्लैश होगा एक दूसरे के साथ तब एक साउंड क्रिएट होगा, ठीक है। यहाँ पे लीव्स का रसलिंग साउंड भी है, थंडर क्लाउड्स का साउंड भी है। सारा चिल्ड्रन, फ्लावर चिल्ड्रन, दे रश आउट, वो लोग दौड़ के बाहर आ रहे, इसका साउंड भी है। सो इट्स अ काइंड ऑफ ग्रैंड पैरेड ऑर्केस्ट्रेटेड बाय द नेचर इटसेल्फ। क्लियर? ये सारा पॉइंट भी आप लोग याद रखना। चलो अब फिगर ऑफ स्पीच में आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सोनिफिकेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और थ्रू आउट द पोएम यूज किया गया है। स्टॉर्म क्लाउड्स रंबल, पर्सोनिफिकेशन
Moist east wind comes marching, personification. Crowds of flowers come out, personification. Flowers go to school school undergrounds, personification. इसके बावजूद भी बहुत सारा personification यहाँ पे यूज़ किया गया है, मेटाफर यूज़ किया गया है. देखो चिल्ड्रेन को, ये थोड़ा इधर आएगा, ठीक, कोई इशू नहीं. चिल्ड्रेन को यहाँ पे फ्लावर्स के साथ कंपेयर किया गया है. ओके, सिंबॉलिज्म यूज़ किया गया है यहाँ पे कि फ्लावर्स मतलब इनोसेंस एंड जॉय ऑफ लाइफ, ब्यूटी. ओके, फ्लावर्स मतलब कि इनोसेंस. मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसा कोई भी इंसान है पृथ्वी में जिन्हें फूल पसंद नहीं है. सो फ्लावर्स मीन्स इनोसेंस एंड जॉय ऑफ लाइफ. फ्लावर्स कम with different kind of colors. It also conveys, the colors convey the different shades of our life. कि हमारा जो लाइफ है वो हमेशा सेम नहीं रहता है, कभी बहुत दुख होता है, कभी खुशी होता है, कभी मिक्स्ड रहता है. तो सब कुछ मिला जुला के हमारा लाइफ है. ओके, अगर आप एक्सपेक्ट करोगे, ये आशा करोगे कि आप हमेशा खुश रहोगे आपके लाइफ में, नॉट पॉसिबल. अगर आप ये सोचोगे कि आप हमेशा दुखी रहोगे आपके लाइफ में, इट्स ऑल्सो नॉट पॉसिबल. सो आवर लाइफ इज अ काइंड ऑफ mixture of happiness and sadness. Okay, next imagery. देखो, branches clash together in the forest, it creates an image. ओके, सो इट्स इमेजरी. ओनोमैटोपिया यूज़ किया गया है जो कि साउंड्स है, रंबल, रसल. हर एक साउंड जो है उसे ओनोमैटोपिया कहा जाता है. रिपीटेशन यूज़ किया गया है, ब्रांचेस, क्लैड्स एंड वाइट. ओके, यहाँ पे एंड का रिपीटेशन है. एलिट्रेशन यूज़ किया गया है. देखो, स्टॉर्म क्लाउड्स, इस साउंड का रिपीटेशन है. मॉइस्ट ईस्ट विंड कम्स, इस साउंड का रिपीटेशन है. ऐसा बहुत और भी सारा एल्ट्रेशन यूज़ किया गया है. और लास्ट एंजैममेंट यहाँ पे यूज़ किया गया है. एंजैममेंट मतलब क्या, एक सेंटेंस शुरू हो रहा है लेकिन वो ख़त्म हो रहा है नेक्स्ट लाइन पे जाके. जैसे कि ये वाला तुम एग्जाम्पल के तौर पे ले लो. देखो, ब्रांचेस, यहाँ से ये लाइन शुरू हो रहा है, ये सेंटेंस. ब्रांचेस क्लैश टुगेदर इन द फॉरेस्ट एंड द लीव्स रसल इन द वाइल्ड विंड एंड थंडर क्लाउड. देखो, यहाँ पे जगह ख़त्म नहीं हुआ, ये नेक्स्ट लाइन पे आ गया. यहाँ से फिर ये लाइन चल रहा है, पिंक एंड येलो, फिर से नेक्स्ट लाइन पे आ गया. सो ये जो जंप हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एंजैममेंट. एंजैममेंट इज वन ऑफ द foremost important figures of speech in this particular poem. Okay, now let's come to the themes. Themes बहुत important है. Childhood, wonder and innocence. Why? Because the speaker is very wondered that when June comes, when monsoon comes, at that time only all the different colored flowers come out, and when monsoon is not there, वो सारा फूल कहाँ जा रहा है. So it's a wonder, it's innocence. वो बच्चा यहाँ पे अपनी माँ को ये बोल रहा है कि माँ, आपको पता है ये सारा जो फूल है ये इन सब का घर का है, आसमान पे है. So it's innocence. Okay, longing for connection and belonging. See, children are longing for holiday and mother. Definitely कि आप लोग जब स्कूल जा रहे हो, ठीक है, जब स्कूल गए हो, आप लोग चाहते हो कब स्कूल छुट्टी हो जाए, हम लोग घर. जो स्पेशली ये होता है, अगर मान लो कि फ्राइडे को स्पेशली होता है कि चलो भैया आज घर जाके फिर 2 दिन के लिए छुट्टी, या फिर मान लो कि सैटरडे को आप लोग का स्कूल दिया है, ठीक है, तो सैटरडे को भी ऐसा हो सकता है. Okay, dependency. The children are dependent on their mother and that is why they are eager to go to the sky. Okay, सारा फ्लावर जो है, फ्लावर, पेड़ पौधा सब ऊपर की तरफ बढ़ता है. सो इट्स अ काइंड ऑफ डिपेंडेंसी दैट ऑल द लाइक, ये होता है ना हम लोग के साथ कि आप जो स्कूल से आते हो, मानो कि पुल कार से आप घर आते हो, तो घर जा आके आपने पहले पापा को देखा या फिर दादी को या फिर किसी को, भाई को, बहन को, तो पहले हम लोग ये पूछते हैं कि मम्मी कहाँ है, माँ कहाँ है. सो इट्स लाइक, आई मीन, माँ के बिना सब कुछ अधूरा है इस दुनिया में. सो समहाउ वी ऑल आर डिपेंडेंट ऑन आवर मदर्स. सो इट डिपेंडेंसी इज ऑल्सो अनदर थीम. क्लियर? आई होप क्लियर. लास्ट एक पॉइंट है जो मैंने लिखा यहाँ पे, आप लोग देख लो, आप लोग आंसर में भी ऐड करना. इंपॉर्टेंट पॉइंट टू लुक एट. देखो, थ्रू आउट द पोएम द चाइल्ड इज एक्टिव. देखो, उस जो कन्वर्सेशन है यहाँ पे, ये तो हम लोग को पता चल रहा है कि कन्वर्सेशन हो रहा है एक बच्चा और उसके माँ के बीच में. ओके, सो थ्रू आउट द पोएम द चाइल्ड इज एक्टिव एंड द मदर इज इनएक्टिव. माँ का यहाँ पे कोई डायलॉग हम लोग को नहीं मिल रहा है. द चाइल्ड इज टॉकिंग एंड आस्किंग क्वेश्चंस टू द मदर, बट वी डोंट गेट एनी active reply from the mother.
देखो वो बच्चा खुद आंसर कर रहा है, वो बच्चा खुद रिप्लाई दे रहा है। सो कन्वर्सेशन हो रहा है यहाँ पे, ये हम लोगों को समझ में आ रहा है, लेकिन माँ की तरफ से कोई रिप्लाई हम लोग को नहीं मिल रहा है। बट वी कैन फील द प्रेजेंस ऑफ द मदर थ्रू आउट द पोएम एंड दैट इज व्हाट वी कॉल डिपेंडेंसी। लेकिन थ्रू आउट द पोएम हम लोग को ये फील हो रहा है कि इस पोएम में माँ भी है, इस पोएम में माँ है। हालांकि कोई एक्टिव रिप्लाई हम लोग को नहीं मिल रहा है माँ की तरफ से, लेकिन माँ इस पोएम में है। दिस थॉट और दिस एस्पेक्ट ऑफ द पोएम शोज हाउ इम्पॉर्टेंट मदर इज to us. We cannot even think a day without mother. So this poem is also a eulogy to all the mothers. So this poem is also a celebration for nature as well as for mother. So यहाँ पे जाके ये पोएम जो है ख़त्म होता है। सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को, लेकिन फिर भी एक बार वीडियो आप लोग देख लोगे फिर सोचोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। आई होप सारा पॉइंट्स आप लोगों ने बुक पे लिख लिया है, तो फिर से पोएम को पढ़ो, देखो, तब जाके आप लोग ये पता चलेगा कि कहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है। फिर से वीडियो देखो, उसके बावजूद भी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर लिखो और मैं आप लोग को रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अब अगर आप लोग को पसंद आया है वीडियो तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस अ सिंगल अपडेट। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एंड जय हिंद।